میرا دعویٰ، میرا اعلان یہ ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں۔ علیہ السلام یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر سلامتی ہو اللہ کی، کیوں نہیں بول سکتا؟ میں اپنے آپ کو بھی علیہ السلام بول سکتا ہوں، مجھ پر سلامتی ہو، یعنی مجھ پر سلامتی ہو کہ عربی دوسری ہے، لیکن میں اگر ایسا بول رہا ہوں تو پرابلم کیا ہے؟ تو میرا اعلان اور دعویٰ یہ ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، جو داؤد علیہ السلام کی نسل مردوں میں سے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل عورتوں میں سے، یعنی میری والدہ ان کی نسل سے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، اور میرے والد صاحب داؤد علیہ السلام کی نسل سے، میں دونوں خاندان کا ملن ہوں۔ تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر میں مہدی علیہ السلام ہوں تو میرا ساتھ میں اور ایک بھی دعویٰ ہے، اعلان ہے کہ میں ہی وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ قرب قیامت آئیں گے اور خنزیر کا قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور جزیہ کو بند کر دیں گے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک وجہ ہے یہاں پر سمجھانے کی، وہ یہ ہے کہ میرا اعلان یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کو ہی کوڈ ورڈ میں عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے۔ جو حدیث میں جو ذکر آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کہا گیا مہدی علیہ السلام کو، اور خنزیر کو مسیح دجال کو خنزیر کہا گیا، اور صلیبی عقیدے کے مراد مشرک جو ہو گئے ہیں، جو شرک والا عقیدہ ہے عیسائیوں میں، اس سے مراد صلیب ہے، اور سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے تو پھر جزیہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یعنی ٹیکس جو نان مسلمس کو دینا پڑتا ہے، اسی لیے جزیہ موقوف کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جزیہ کو لاگو کرنے کے لیے مسلمان حکمران کو۔ اب جزیہ موقوف کرنے کا جب اللہ حکم دے رہا ہے تو پھر مہدی علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کو بند کیسے کریں گے؟ پتہ یہ چلا جب کافر ہی نہیں رہیں گے تو جزیہ کس سے لیں گے؟ ہاں، تو میں آپ کو بیان یہ کرنے جا رہا ہوں کہ مہدی علیہ السلام کو کوڈ ورڈ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہا گیا ہے حدیث میں، اور مسیح دجال کو کوڈ ورڈ میں خنزیر کہا گیا، یعنی پگ یعنی سور، اور شرک، عیسائیوں کا شرک جو ہے، شرک والا عقیدہ، اسے صلیب کہا گیا ہے، اور سارے اہل کتاب کا اسلام میں داخل ہو جانا، اس سے مراد جزیہ کو موقوف کر دینا ہے۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے تو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا، دیکھیے میں تو آسمان سے نہیں آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو پیدا ہوا، مہدی علیہ السلام پیدا ہو گئے لکھا ہوا ہے حدیث میں، تو میں تو آسمان سے آیا نہیں، پھر آسمان سے تو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے، آپ یہ بولیں گے نا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے آسمان پہ، آپ کا عقیدہ ہے، ان کی جگہ کوئی دوسرے کو مصلوب کر دیا گیا، آپ یہ بولیں گے، اسی لیے آپ لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی علیہ السلام ہو سکتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو زندہ ہے، آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قرب قیامت نازل ہو کے مسیح دجال کو ماریں گے۔ بھائی 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 ذرا میرا دعویٰ اور اعلان یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو 2000 سال پہلے آئے تھے، ان کا انتقال قرآن اور حدیث شریف کلیئر بیان کرتی ہے۔ اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، وہ آسمان پہ ہی نہیں اٹھائے گئے تھے 2000 سال پہلے یا 1850 سال پہلے یا 1800 سال پہلے، تو وہ پھر نازل کہاں سے ہوں گے؟ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے لیے 2000 سال پہلے آئے تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ آسمان پہ زندہ نہیں ہے اپنے جسم کے ساتھ، اور وہ قرب قیامت بھی نہیں آنے والے آسمان سے، بلکہ آ ہی نہیں سکتے۔ وہ اگر وہ آ گئے آسمان سے تو قرآن نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف غلط ثابت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بائبل، توریت، انجیل، زبور، جو جتنے بھی کتابیں ہیں وہ سب غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کا قتل کریں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، لہذا حدیث غلط تو نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں کچھ حکمت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ویڈیو میں خاص طور سے بہت ہی اچھے انداز میں اور آہستہ آہستہ ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ جو آئے تھے، سن آف مریم علیہ السلام،
जिसका इंतकाल 2000 साल पहले, सॉरी 1880 साल पहले अगर हो गया है, तो फिर आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। बात समझ में आ रही है? तो उसका सबूत क्या है? क्या ए मुसलमानों, आप जानते हैं कि आपका ईमान कुरान पे है? आप बोलेंगे कि हाँ है। क्या आपका ईमान हदीस शरीफ पर है? आप बोलेंगे कि हाँ है। ठीक है। दुनिया में बड़े बड़े आलिम लोग, मुफ्ती लोग बहुत ज़्यादा जब रिसर्च करने के लिए निकले तो उनको पता चल गया कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित है। लेकिन अब पब्लिक में बोलने के लिए डरते हैं, क्योंकि फितने से यानी फसाद से डरते हैं। वो लोग उम्मीद करते हैं कि हम बोलेंगे तो पब्लिक लड़ेगी हमारे से, झगड़े में क्यों पड़ो। और ख़ुद मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जो जमात अहमदिया का बानी है, उसने भी तो साबित कर दिया है कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित है, जिसकी बिना पर जामिया अज़हर से फतवा भी जारी हुआ, मिस्र से यानी इजिप्ट से, कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कुरान और हदीस से साबित है। तो फिर ईसा इब्न मरियम आने का जिक्र हदीस में क्यों मौजूद है? भाई बात यह है कि कोई नेक शख्स होता है, उसे फरिश्ता कह देते हैं, कहते हैं कि भाई आप तो बड़े फरिश्ते हो यार, आपने बड़ी मदद की है। जैसा कि कोई छोटा मासूम बच्चा होता है तो कहते हैं अरे भाई फरिश्ते के जैसा बच्चा है, उसको क्या तकलीफ दे रहे हो आप। उसी तरीके से मेहदी अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह ताला अपनी रूह मेहदी अलैहिस्सलाम में फूकेंगे तो वो खलीफतुल्लाह कहलाएंगे, खलीफतुल्लाह कहलाएंगे तो रूह अल्लाह कहलाएंगे। रूह अल्लाह को कोड वर्ड में क्या कहा जाएगा? कोड वर्ड में, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इस्राइल के लिए आए थे, उनका एक लक़ब था रूह अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम को कहते हैं खलीफतुल्लाह, उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के दोस्त। उसी तरीके से मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अपनी रूह फूकेगा। देखिए खलीफतुल्लाह है मेहदी अलैहिस्सलाम के नहीं? आप बोलोगे कि हाँ। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा ज़मीन में बनाया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, मैंने अपनी रूह आदम में फूकी। तो अल्लाह ताला अपनी रूह आदम में फूके तो आदम अलैहिस्सलाम कौन हो गए? रूह अल्लाह हो गए कि नहीं? हाँ। तो रूह अल्लाह के दूसरे माने क्या हुए? खलीफतुल्लाह हो गए। खलीफतुल्लाह रूह अल्लाह किसको कहा गया है? मेहदी अलैहिस्सलाम को कहा गया है। अब मेहदी अलैहिस्सलाम जब खलीफतुल्लाह है तो रूह अल्लाह भी हो गए, और जब रूह अल्लाह हो गए तो रूह अल्लाह को कोड वर्ड में क्या बयान कर सकते हैं, यानी अल्लाह की रूह को क्या बयान कर सकते हैं? क्योंकि अल्लाह की रूह वाला जो लफ्ज़ है ये ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ आया था, क्योंकि ईसा रूह अल्लाह। उसी तरीके से मेहदी अलैहिस्सलाम को ही कोड वर्ड में रूह अल्लाह की जगह है, यानी रूह अल्लाह की जगह ईसा इब्न मरियम कह दिया गया। लिहाजा हदीस शरीफ जो बयान करती है ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ुल, नाजिल होना, यानी आसमां से आना। क्या आना? अल्लाह की तरफ से नाजिल होना। क्या नाजिल होना? रूहुल कुद्दूस नाजिल होना। रूह नाजिल होना किसमें? मेहदी अलैहिस्सलाम में। तो वो रूह अल्लाह कहलाएंगे। रूह अल्लाह को क्या कहा जाएगा कोड वर्ड में? ईसा इब्न मरियम। बात समझ में आ गई? तो हदीस शरीफ में जो आया है ईसा इब्न मरियम नाजिल होने का मतलब, उससे मुराद मेहदी अलैहिस्सलाम ही है, खलीफतुल्लाह ही है, जो रूह अल्लाह है। बात समझ में आ गई आपके? तो हदीस भी सच्ची, क्योंकि हदीस ये हिकमत है। उसी तरीके से मसीह दज्जाल जो शैतानी नबी होगा, शैतानी मसीह होगा, झूठा मसीह होगा, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया है हदीस शरीफ में खंजीर, पिग, सुएन, सुअर, वो जो बुरा लगता है, वो जो इसे मैं बुरा देखता हूँ। बात समझ में आ गई? तो फिर देखिए आप, क्या ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे और गली गली में फिरकर, जंगल जंगल में फिरकर खंजीरों को मारते फिरेंगे? क्या ये कोई नबी या रसूल के शाया है कि वो आसमान से तो आ गए और आके गली गली सुअरों को मारते फिर रहे हैं? हिकमत का इस्तेमाल करिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो, सोचो समझो, कुरान हदीस को पढ़ो, हिकमत से भरी हुई है ये किताबें। तो ऐ मुसलमान भाइयों, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको सारी दलील दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल की दलील मैं आपको हदीस शरीफ से दूंगा, और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ही
जो है जो आए थे 2000 साल पहले, उनका इंतकाल कब हुआ, क्यों हुआ, सारी मैं दलील दूंगा आपको। और मैं ये भी दलील दूंगा कि मेहदी अलैहिस्सलाम ही से इब्न मरियम अलैहिस्सलाम कहा गया है हदीस में। लेकिन मैं पहले आपको वजाहत तो कर दूं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। मैं मेहदी अलैहिस्सलाम को ही कोड वर्ड में, यानी एक छुपे हुए लफ्ज़ में, यानी एक राजदारी लफ्ज़ में ईसा इब्न मरियम कहा गया है हदीस में, आने वाले जो हैं। और मसीह दज्जाल को खंजीर कहा गया है, शैतानी मसीह, शैतानी नबी। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जब 2000 साल पहले आए थे तो बदरू जो है सुअरों में दाखिल किए थे, इसीलिए उससे मुराद बदरू से मुराद मसीह दज्जाल से मुराद खंजीर। ठीक है, तो ना तो ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इज़राइल के लिए 2000 साल पहले आए थे, ना तो वो नाजिल होने वाले हैं, क्योंकि वो आसमान पे गए नहीं तो उतरेंगे कहाँ से। उनका इंतकाल हो गया और ख़बर भी दुनिया में मौजूद है। आजकल साइंटिस्ट बता रहे हैं, पूरी रिसर्च करके खबरें दरियाफ्त हो रही है, अलग अलग जगह बता रहे हैं, बल्कि प्रूफ भी कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर ही नहीं गए, बनी इज़राइल के लिए जो आए थे, तो आएंगे कहाँ से? नहीं आएंगे, ता क़यामत तक आने वाले नहीं हैं ईसा अलैहिस्सलाम। बात समझ में आ गई? तो फिर हदीस में जिक्र आया है, हदीस में जिक्र इसलिए आया है कि मेहदी अलैहिस्सलाम को कोड वर्ड में ईसा इब्न मरियम कहा गया, रूह अल्लाह कहा गया। तो रूह अल्लाह की जगह लफ्ज़ कोड वर्ड की जगह ईसा इब्न मरियम इस्तेमाल किए गए। जैसे एक अच्छे आदमी के लिए फरिश्ता इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बुरे आदमी के लिए शैतान इस्तेमाल किया जाता है, इब्लीस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से आपको मेहदी अलैहिस्सलाम को ईसा इब्न मरियम कहा गया कोड वर्ड में। हाँ, बात समझ में आ रही है? और मसीह दज्जाल को खंजीर कहा गया है। उसी तरीके से जो ईसाईयत में जो शिर्क बसा हुआ है, खुदा का बेटा बना दिए ईसा अलैहिस्सलाम को, और बीबी मरियम को जो है ना ख़ास तरीके से उनकी पूजा की जा रही है अलग अलग अंदाज में, चर्चेस में, तो वो जो शिर्क उनमें बस गया है, उसको तोड़ देने से मुराद सलीब है। क्योंकि ईसाइयों का जो अकीदा था उसके मुताबिक मछली था उनका निशान, क्रॉस नहीं था, यानी सलीब उनका निशान नहीं था, अगर आप तारीख उठा के देखें। और सारे अहले किताब का इस्लाम में दाखिल हो जाने से मुराद, जब काफिर ही नहीं रहेंगे तो जिजिया किससे लेंगे? तो इसको कहते हैं जिजिया का मौकूफ हो जाना। मेरी बात देखिए, ये ज़रा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ भाई, जब ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल प्रूफ हो जाएगा कुरान और हदीस से, और मसीह दज्जाल से मुराद यानी खंजीर से मुराद मसीह दज्जाल साबित हो जाएगा हदीस से, कुरान से, और जिजिया का मौकूफ कर देना ये साबित हो जाएगा कि सारे अहले किताब दीन में दाखिल हो जाएंगे, इस्लाम में, तो भाई मेरी लाइन क्लियर हो जाती है। बात सीधी सी है भाई। प्रूफ, बात, हर दही वाले को अपना दही बड़ा मीठा प्यारा लगता है। हाँ, तो वैसे ही भाई मेरा जो दावा है, मेरा जो ऐलान है, वो मेरी लाइन क्लियर हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम को अगर मैं कुरान और हदीस से इंतकाल साबित कर दूं, तो भाई फिर मेरी तो चांदनी चांदनी है, इस्लाम का गलबा है। हाँ, फिर इसीलिए मैं इस मामले के पीछे पड़ा हूँ। हाँ, लेकिन ये सच है, ये कोई मजाक नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो बनी इज़राइल के लिए आए थे 2000 साल पहले, इंतकाल साबित है कुरान और हदीस से, बिल्कुल बात सच है। अब मैं इसके आगे कुछ दलील वाली बात करूं? बिस्मिल्लाह।